ہم خدا تک رسائی کریں. لیکن آپ اعمال 2 باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے عید پینتیکوس کے دن خدا خود روح القدس کے وسیلے سے ایمانداروں کے بیچ آتا ہے, خود ایمانداروں تک رسائی کرتا ہے. پیدائش 11ویں باب کا جب ہم مطالعہ کریں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنا نام کریں, ہم اپنی بڑائی کریں. لیکن اعمال 2 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے جب پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا تو خدا کی بڑائی ہوئی, خدا کی تمجید ہوئی, خدا کی تعظیم ہوئی. پیدائش 11ویں باب میں ان لوگوں کی زبان میں فرق آیا. ایک قوم تھے, ایک ہی زبان تھی, ایک ہی بولی تھی, لیکن خدا نے ان کی زبان میں اختلاف پیدا کیا, انتشار پیدا کیا, کھلبلی پیدا ہوئی, وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے. لیکن اعمال 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے وہ سب مختلف زبانیں بولتے ہیں. تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ سب کو ایسا لگا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. ان کے اختلافات جاتے رہے, ان کا انتشار جاتا رہا, ایک دوسرے سے مختلف ہونا, زبان میں, کلچر میں فرق ہونا. ان سب کے باوجود ان کو یہ لگ رہا تھا جو یہ بولی بول رہے ہیں وہ میری بولی ہے, وہ میری زبان ہے, وہ میری ہی زبان میں خدا کی تمجید کر رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ہی لحاظ سے بات کر رہا ہے. اور روح القدس کے وسیلے سے وہ لوگ جو ایک دوسرے سے فرق تھے, وہ لوگ جو ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے, روح القدس کے نزول کے بعد جب غیر زبانیں ان کو ملی تو ہر قبیلے کو, ہر قوم کو ایسا لگا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. ان کو ایسا لگا کہ یہ میرے ہی لوگ ہیں. ان کے اندر کے فرق ختم ہوئے. پیدائش 11ویں باب میں ہمیں ملتا ہے خدا کی جانب سے لعنت ہوتی ہے, قرض ہوتی ہے, اور وہ لوگ ایک دوسرے سے فرق زبانیں بولنے لگتے ہیں. لیکن اعمال 2 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے روح القدس کے ذریعے سے خدا کی برکت آتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں. سب لوگ ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلے کی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پر آپ کو انتشار نظر آئے گا, لیکن اعمال 2 باب میں آپ کو اتحاد نظر آئے گا. پیدائش 11ویں باب میں آپ کو جو ہے وہ اختلافات نظر آئیں گے, لیکن اعمال 2 باب میں آپ کو ہم آہنگی نظر آئے گی. ادھر آپ کو بدحالی نظر آئے گی اور اعمال 2 باب میں آپ کو بحالی نظر آئے گی. ادھر خدا کی لعنت نظر آئے گی اور ادھر آپ کو خدا کی برکت نظر آئے گی. خدا نے ان کے اندر اتحاد پیدا کیا. روح القدس کے وسیلے سے وہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ پائے. وہ مختلف قومیں تھیں لیکن وہ سب قومیں ایک دوسرے کو سمجھ پا رہی تھیں. ان کو لگ رہا تھا یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. پیدائش 11ویں باب میں کہتے تھے ہم اپنا نام کریں, اپنی بڑائی کریں. لیکن اعمال 2 باب میں ہمیں خدا کی تعظیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, خدا کی بڑائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور میں نے کہا کہ اعمال 2 باب میں عید پینتیکوس کے دن روح القدس کا نزول پیدائش 11ویں باب میں موجود بابل کی لعنت کی منسوخی ہے, اس کا ریورسل ہے, اس کا ریورس ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. اور کلام مقدس ہم پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ پیدائش 11ویں باب میں خدا کی ناراضگی, خدا کا غضب, خدا کا غصہ, خدا کی عدالت نظر آتی ہے. لیکن اعمال 2 باب میں ہمیں خدا کی رحمت, خدا کی شفقت, خدا کی محبت اور خدا کی برکت نظر آتی ہے. وہاں پر ایک قوم تھی لیکن وہ بڑی قوموں میں تقسیم ہو گئی. یہاں پر بڑی قومیں تھیں لیکن وہ جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے, جب وہ غیر زبانیں بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میری ہی بولی, میری ہی زبان بول رہے ہیں. اور جب پطرس واز کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر روح القدس کی رہنمائی میں کیے جانے والا کلام ان غیر اقوام کے دل پر ایسی چوٹ لگاتا ہے کہ وہ جماعت جو بالا خانہ میں دعا کر رہی تھی وہ 120 کی جماعت تھی. کتنے کی جماعت تھی؟ 120 کی. لیکن روح القدس کی موجودگی میں جب روح القدس نازل ہوا تو وہی 120 کی جماعت 3120 میں تبدیل ہو گئی. یہ روح القدس کی قدرت ہے. خدا کی روح القدس کی صورت میں برکت تھی کہ خدا نے قوموں کو متحد کیا, خدا نے ان کو یونائٹ کیا, خدا نے ان کو ایک کیا. ایسا جانتے ہیں کیوں ہوا؟ کیونکہ مسیح یسوع کے بعد جب روح القدس کا نزول ہوا تو روح القدس کا نزول ایک بات کی شہادت تھی, ایک بات کا اظہار تھا, ایک بات کی گواہی تھی کہ اب خدا کی عظمت, اب خدا کی برکت, اب خدا کی رحمت محض قوم بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے. اب خدا کی برکت قوموں کے لیے ہے, اب خدا کی رحمت ہر قبیلے کے لیے ہے, اب خدا کی شفقت ہر رنگ نسل کے لیے ہے. اب خدا محض قوم بنی اسرائیل تک محدود نہیں رہا. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو رد کیا. نو,
कौम बनी इसराइल की अहमियत वही है, लेकिन रूहुल कुद्स के नज़ूल के वसीले से खुदा मुझ पर, आप पर, ईमानदारों पर ये बात वाज़ेह करता है कि वो शख्स किसी भी कौम से हो, किसी भी कबीले से हो, किसी भी एरिया में रहता हो, जिस भी हालत में है, वो अमीर है, गरीब है, जवान है, बुजुर्ग है, वो जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार है, लेकिन वो लम्हा जब वो मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, जब वो अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दे देता है, रूहुल कुद्स उसी वक्त उसे खुदा के खानदान में शामिल कर देता है। यह है खुदा की बरकत, यह है खुदा की रहमत कि अब खुदा तमाम कौमों के लिए है, अब खुदा हर कौम कबीले के लिए है। और मैंने कहा, हमने देखा कि मुख्तलिफ कौमें थी, लेकिन वो जब वहां पर आई हैं, रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो वो सब एक गिरोह में शामिल हो गए, उन सब ने मसीह यीशु को कबूल किया। सो रूहुल कुद्स का नज़ूल इत्तेहाद लेकर आता है, रूहुल कुद्स का नज़ूल कलीसियाओं में, ईमानदारों में इत्तेहाद लेकर आता है। आज सवाल है, हम कलीसिया में एक दूसरे से कितने ही फर्क क्यों ना हो, हमारी ख्वाहिशात कितनी ही फर्क क्यों ना हो, हमारी आदत कितनी फर्क क्यों ना हो, हमारे पेशे एक दूसरे से कितने फर्क क्यों ना हो, सवाल ये है कि अगर हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हैं, क्या हम कलीसियाई तौर पर मुत्तहद हैं, क्या हमारे अंदर इत्तेहाद है, क्या हम कलीसियाई तौर पर एक ही सोच रखते हैं, क्या हम कलीसियाई तौर पर एक ही मकसद रखते हैं, क्या हम एक ही कलाम की पैरवी करते हैं, क्या हम एक ही रूह की रहनुमाई में चलते हैं। हम लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कलीसियाएं हैं, लेकिन सवाल है क्या ये कलीसियाएं मुत्तहद हैं? एक दूसरे के फर्क के बावजूद, एक दूसरे के इख्तिलाफात के बावजूद, एक दूसरे के डिफरेंसेस के बावजूद, क्या इन तमाम कलीसियाओं की जिंदगी का मकसद रूहुल कुद्स की रहनुमाई में मसीह यीशु की मनादी करना है, इंजील की मनादी करना है, या अपने अपने डिफरेंसेस पर या अपने अपने अकायद पर कायम और डटे रहना है? क्योंकि जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो हमें कलीसियाई इत्तेहाद नजर आया। मुख्तलिफ कौमें थी, मुख्तलिफ नस्लें थी, मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन वह सब हमें एक होते हुए नजर आते हैं। आप अगर इनमें पढ़े अमाल दूसरे बाब में तो आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट कौमों के लोग हैं। तकरीबन 16 से 17 अक़वाम के लोग हैं जो एक हो जाते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, मसीह यीशु को कबूल करते हैं और एक ही जमात में शामिल हो जाते हैं। और ये तब हुआ जब बाकायदा तौर पर ईमानदारों में रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। रूहुल कुद्स का नज़ूल सिर्फ कलीसियाओं में इत्तेहाद नहीं लाता, ईमानदारों में इत्तेहाद नहीं लाता, बल्कि रूहुल कुद्स, मैंने कहा जैसे बाबल की लानत की मनसूखी है, रूहुल कुद्स जब किसी ईमानदार की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी से लानतें जाती रहती हैं, उसकी जिंदगी से कदूरतें जाती रहती हैं। रूहुल कुद्स की मौजूदगी ईमानदार जिंदगी में रिवाइवल लेकर आती है, इनकलाब लेकर आती है। और जब कलीसियाएं रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलती हैं तो कलीसियाएं पूरी दुनिया में इनकलाब लेकर आती हैं। उस दिन इनकलाब है। वादा खाना में 120 की जमात खुदा के हजूर दुआ कर रही है, खुदा के हजूर खड़े हैं और रूहुल कुद्स नाजिल होता है और वह सब रूहुल कुद्स को तजरीबा करते हैं। और जब वो रूहुल कुद्स को तजरीबा करते हैं तो कलीसियाई इनकलाब आता है। 120 की जमात 3120 की जमात बन जाती है। मेरे से तो आज भी कलीसियाओं में इनकलाब लाने के लिए रूहुल कुद्स की जरूरत है। कोई पूछे कि रूहुल को आज कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो मुमकिन है कोई कहे कि बिल्डिंग है, कोई कहे कि कलीसिया को इस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस चीज की जरूरत है, या फाइनेंशियली इस चीज की जरूरत है, और वह सब ठीक होंगे, लेकिन सबसे बुनियादी जरूरत कलीसिया की है वो रूहुल कुद्स। रूहुल कुद्स के बगैर ना ही कलीसियाई इत्तेहाद होगा और रूहुल कुद्स के बगैर ना ही कलीसियाई इनकलाब होगा। दूसरा नुक्ता जो आज हम सीखेंगे वो है खुदा के मकसद के लिए कुव्वत। रूहुल कुद्स का नज़ूल क्या था, उसकी वजह क्या थी? खुदा के मकसद के लिए कुव्वत। रूहुल कुद्स इसलिए नाजिल हुआ ताकि खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए ईमानदारों को कुव्वत अता की जाए, ताकत अता की जाए, कैपेसिटी दी जाए। इब्तदाई कलीसिया को ये कुव्वत मिली कि वो खुदा के कलाम को सारी दुनिया तक फैलाए। उन शागिर्दों को, उन ईमानदारों को जो मसीह यीशु के पैरोकार थे, उन्हें रूहुल कुद्स दिया गया ताकि वो खुदा के मकसद को, निजात के काम को कामिल तौर पर सरंजाम दे सके। हमने सीखा कि ईद पेंटिकोस्त के दिन कौम बनी इसराइल फसल की कटाई की ईद मनाते थे।
कि उन्होंने फसल काटी है, वो इस बात की खुशी करते थे। और ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स का नज़ूल ईमानदारों को कुव्वत देता है, ईमानदारों को तकवीयत देता है, ताकि वो खुदा की नजात की फसल की कटाई कर सके, ताकि खुदा के लिए ईमानदारों को जमा कर सके। मत्ती की इंजील 9वें बाब में 36-39 आयत पढ़े तो मसीह यीशु ने फरमाया कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े हैं। बस क्या करें? फसल के मालिक से मिन्नत करें, दरखास्त करें कि वो और मजदूर भेजे। और जब लफ्ज मजदूर होता है तो लाशवरी तौर पर हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये सिर्फ खुदाम की बात हो रही है, पास्टर्स की, बिशप्स की बात हो रही है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताऊं, ईद पेंतिकोस्त के दिन नाजिल होने वाला रूहुल कुद्स हर ईमानदार को मिलता है, सिर्फ खुदाम को नहीं मिलता, सिर्फ पास्टर्स को नहीं मिलता, सिर्फ बिशप्स को नहीं मिलता। रूहुल कुद्स हर एक ईमानदार के लिए है। और अगर हर एक ईमानदार को रूहुल कुद्स मिलता है तो इस फसल की कटाई के लिए हर ईमानदार खुदा का मजदूर है। मैं भी खुदा का मजदूर हूँ, आप भी खुदा के मजदूर हैं, हर एक बहन खुदा की मजदूर है, हर एक भाई खुदा का मजदूर है। और हम सबको रूहुल कुद्स की रहनुमाई में ये फसल काटनी है, ये फल बटोरने हैं, इकट्ठा करना है, लोगों को खुदा के हजूर लेकर आना है, ताकि खुदा के नाम की तमजीद हो, खुदा के नाम की सिताइश हो। और यहूदी लोग फसल की कटाई की खुशी मनाते थे, हम ईद पेंतिकोस्त के दिन इस बात की खुशी मना सकते हैं कि खुदा ने ईमानदारों में हमें भी शामिल किया, क्योंकि हम सब गैर अक़वाम से हैं। हम सब क्या हैं? गैर अक़वाम से हैं। हम रूहुल कुद्स, जो ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ, मैं और आप उसी का फल है। हम सब आज खुदा के हजूर हैं। इसकी वजह रूहुल कुद्स है कि रूहुल कुद्स ने गैर कौमों को मसीह के खानदान में शामिल कर लिया। और खुशी की बात यह है कि मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूँ। खुशी की बात यह है कि आप भी इस खानदान का हिस्सा हैं, और उसकी वजह रूहुल कुद्स का नज़ूल है। हालेलुया। रूहुल कुद्स ने यह मुमकिन किया कि वो लोग जो खुदा से नावाकिफ है, जो खुदा की कुदरत को शायद दूर से देखते हैं, वो खुदा की कुदरत को तजरीबा भी करेंगे, खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे। और ये हर एक के लिए है। अब मैं हमने पुराने अहदनामे में सीखा है, देखा है, जाना है कि रूहुल कुद्स मखसूस लोगों को मिलता था और मखसूस वक्त के लिए आता था। अब नए अहदनामे में हमें पता चलता है रूहुल कुद्स जब नाजिल होता है तो ईमानदारों के लिए है, हर जान के लिए है, हर ईमानदार के लिए है, और हर वक्त रहनुमाई के लिए मौजूद है। हालेलुया। और ये रूहुल कुद्स की कुदरत खुदा ने हमें अता की। जब हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में होते हैं तो कलीसियाई तौर पर हम इस बरकत का तजुर्बा करते हैं कि हमारे दिल में मसीह यीशु जैसी मोहब्बत, मसीह यीशु जैसी फिक्र होती है लोगों के लिए। हम दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय हम उनके लिए फिक्रमंद होते हैं कि इन्हें यीशु की जरूरत है। हम बजाय उन पर नालिश करने के, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए दिल में एहसास रखते हैं। मसीह यीशु जब लोगों को देखता तो मसीह यीशु के दिल में तर्स आता है। जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में होता है तो हमारे दिल में भी दूसरे लोगों के लिए तर्स, इज्जत और मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत जो जिंदगियों को तब्दील करने के लिए काविश करती है। और खुदा के कलाम में हमें ये बात वाज़ेह मिलती है। अगर हम इसी अमाल की किताब उसके दूसरे बाब को पढ़ें तो दूसरे बाब, पहले बाब की 8वीं आयत में मसीह यीशु ने रूहुल कुद्स के नज़ूल के बारे में शागिर्दों को एक बात पहले से बता दी। यीशु ने 8वीं आयत में कहा, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो क्या होगा? तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और रूहुल कुद्स नाजिल होने पर तुम कुव्वत पाओगे। और मसीह यीशु ने कहा, कुव्वत पाने के बाद तुम मेरे गवाह होगे। क्या होगे? मेरे गवाह होगे। अब अगर हम कुव्वत की बात करें तो कुव्वत के लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज दुनामिस इस्तेमाल हुआ है। दुनामिस लफ्ज यूनानी ज़बान में इस्तेमाल किया गया है कुव्वत के लिए। मसीह यीशु ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या है? दुनामिस। अब दुनामिस से 3 इंग्लिश ज़बान के लफ्ज निकले हैं। पहला निकला है डायनामो। डायनामो का मतलब है जो रोशनी दे, इल्यूमिनेट करे, लाइट दे। तो जब ईमानदारों की जिंदगी में रूहुल कुद्स आता है, रूहुल कुद्स के वसीले से वो कुव्वत आती है, दुनामिस आता है, तो वो ईमानदार ना सिर्फ अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम की, खुदा की बरकत की रोशनी को तजुर्बा करते हैं, बल्कि वो दूसरों की जिंदगियों को भी रोशन करते हैं। दूसरा लफ्ज जो दुनामिस से इंग्लिश ज़बान का निकला वो है डायनामिक।
اس کا مطلب ہے افیکٹو، پر اثر ہونا، مؤثر ہونا، کسی کی زندگی پر اثر پیدا کرنے والا کردار رکھنا. تو یسوع نے کہا جب روح القدس نازل ہوگا تو تمہارے پاس ایسا کردار ہوگا، ڈائنامک پرسنالٹی ہوگی، ایسی شخصیت جو دوسروں کی زندگیوں میں اثر پیدا کرے گی، جو دوسروں کی زندگیوں میں مسیح کے اثر و رسوخ کو اسٹیبلش کریں گے تاکہ خدا کے کلام کی، مسیح کی انجیل کی منادی ہو سکے. اور تیسرا بڑا اہم لفظ جو ڈونامس سے انگلش زبان میں نکلا وہ ہے ڈائنامائٹ، بارود. ہو سکتا ہے آپ جب لفظ بارود سنیں تو آپ ایک دم منفی جانب جائیں اور سوچیں بارود تو تباہی کے لیے ہوتا ہے، وہ تو چٹانوں کو، گھروں کو تباہ کر سکتا ہے، وہ تو توڑ پھوڑ کرتا ہے. یہ بات سچ ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ جو دنیاوی ڈائنامائٹ ہے، یہ جو دنیاوی ڈونامس ہے، یہ جو دنیا کی ڈائنامائٹ قوت ہے، یہ تو شاید توڑ پھوڑ کرتا ہے، لیکن روح القدس کی جو ڈائنامائٹ ہے وہ جوڑتی ہے. یہ جو ڈائنامائٹ ہے وہ مایوسی لے کر آتا ہے. یہ جو ڈائنامائٹ ہے، دنیاوی ڈائنامائٹ مایوسی لے کر آتا ہے، یہ بارود مایوسی لے کر آتا ہے، لیکن روح القدس کا ڈائنامائٹ آپ کی زندگیوں میں خوشی اور بحالی لے کر آتا ہے. یہ ڈائنامائٹ موت لے کر آتا ہے، لیکن روح القدس کا ڈائنامائٹ آپ کو زندگی کی طرف لے کر چلتا ہے. یہ ڈائنامائٹ ہو سکتا ہے زندگیوں میں بدحالی کو پیدا کرے، لیکن روح القدس کا ڈائنامائٹ آپ کی، میری، ہم سب کی زندگیوں میں بحالی لے کر آتا ہے. پینتیکوست کے دن گمرانی فرقہ، یہودیوں کا گمرانی فرقہ کیا کرتا تھا؟ اپنے اندر نئے لوگوں کو شامل کرتا تھا، اپنے گروہ میں نئے لوگوں کو حصہ بنا لیتا تھا. آج ایمانداروں عید پینتیکوست کے دن جب روح القدس نازل ہوا تو روح القدس کے وسیلے سے ہمیں یہ قوت دی گئی ہے کہ ہم اپنی جماعت میں نئے لوگوں کو شامل کریں، ہم اپنے ساتھ نئے لوگوں کو اپنا حصہ بنا لیں. ہم ایمانداروں کی جماعت میں لوگوں کو شامل کریں جو ابھی تک خدا سے دوری پر ہیں، جو ابھی تک خدا کے تجربے سے محروم ہیں. ہم ان لوگوں کو شامل کریں. اور ابتدائی کلیسیا میں یہ کام مسلسل ہوتا رہا. صرف پینتیکوست کے دن لوگ نئی کلیسیا میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ ہر روز رسول جب دعائیں کرتے، عبادات کرتے تو نئے لوگوں کو اس میں شامل کرتے جاتے. اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. میں نے کہا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنی جماعت میں نئے لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جماعت میں ان لوگوں کو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے جو خدا سے دور ہے. یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس روح القدس اور اس کے وسیلے سے آئی ہوئی قوت ہمارے پاس ہے. جب ڈائنامائٹ ہے، ہمارے اندر پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے. کلام مقدس میں لکھا جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور ہم تبھی وہ کچھ کر سکتے ہیں جب یہ روح القدس کا نزول جو پینتیکوست کے دن ہوا آج ہمارے دلوں میں ہو، آج ہماری زندگیوں میں ہو. آج روح القدس وہ انقلاب، وہ اتحاد ہمارے چرچ میں، ہماری کلیسیا میں لائے، تب ہم نئے لوگوں کو اور بھی دعوت دینے کے قابل ہوں. پھر کیا ہوگا؟ جب روح القدس کی قوت آئے گی تو یسوع نے کہا کہ تم میرے گواہ ہوگے. یسوع نے کیا کہا؟ تم میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے. اور گواہ کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے، یونانی زبان میں جو گریک جو ٹرم استعمال کی گئی ہے گواہ کے لیے وہ ہے مارتس. اب مارتس جو یونانی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ دو معنوں میں، ایک تو گواہ کے لیے، دوسرا شہید کے لیے. ایک تو گواہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، دوسرا شہید کے لیے. اور اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو بائبل مقدس میں 35 دفعہ لفظ مارکوس استعمال ہوا ہے. اور اگر اس کو ان سارے حوالہ جات کو اسٹڈی کرنے کے بعد ڈیفینیشن نکالیں تو ہمارے لیے گواہ کی ڈیفینیشن یہ نکلتی ہے، وہ ایماندار، وہ مسیح کی گواہ، وہ مسیح کا گواہ جو اپنے مسیح کی گواہی میں قائم رہنے کے لیے اپنی مرضی سے جان دینے تک بھی تیار رہے، مرنے کو بھی تیار ہو، اپنی گواہی اس طرح سے دینے کے لیے تیار رہے. یہ ہے گواہ کی ڈیفینیشن. یسوع نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور تم کیا ہوگے؟ میرے گواہ ہوگے. اور ایک بڑی خوبصورت بات یسوع نے کہی کہ تم میرے گواہ کہاں کہاں ہوگے. اگر ہم 8ویں آیت پڑھیں پہلے باب کی، اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت، تو مسیح یسوع نے کہا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تم میرے گواہ ہوگے. یو ول بی مائی وٹنس. تم میرے گواہ ہوگے. یسوع نے یہ نہیں کہا تم میری گواہی دو گے، یسوع نے کہا تم میرے گواہ ہوگے. کوشچن ہے، سوال یہ ہے
کہ میں कैसे मसीह का गवाह बन सकती हूँ, मैं कैसे मसीह यीशु का गवाह बन सकता हूँ। कैसे मुमकिन है? उसके दो तरीके। पहला, आपकी शख्सी जिंदगी मसीह की गवाह है। अगर हम इस मानी में जाएं कि यीशु ने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे, तो फिर हमारी अमली जिंदगी जो है वो पहला जरिया है मसीह की गवाही देने का। वो पहला तौर तरीका, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारे फैसले, हमारे इरादे, हमारी जिंदगी के जेस्टर्स और हमारी परहेजगारी, हमारी हलीमी, हमारे हर तरह के अमाल जो मसीह यीशु में रहते हुए हम अपनाते हैं, वो सब मसीह यीशु के गवाह बनेंगे। खुदावंद के खादिम स्टीवन लॉर्ड कहते हैं, आप लोगों को मत बताएं कि आप मसीही हैं। लोगों को मत बताएं कि आप मसीही हैं अगर मसीह यीशु की पैरवी अमली तौर पर आप नहीं करते। अगर आप अमली तौर पर मसीह यीशु के पैरोकार नहीं हैं तो लोगों को मत बताएं कि आप मसीही हैं। और फिर वो कहते हैं, अगर आप अमली तौर पर मसीह यीशु के पैरोकार हैं, अगर आप मसीह यीशु जैसा मिजाज रखने की हर तल मकदूर कोशिश करते हैं, अगर आप मसीह यीशु के पैरोकार हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि ये मसीही। वो क्या कहेंगे? ये क्या है? मसीही। बाइबल मुकद्दस में 4 अनाजील हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हम सब इन 4 अनाजील से वाकिफ है। खुदावंद के खादिम जॉन मैकार्थर कहते हैं, मसीही ईमानदार जमीन पर मसीह यीशु की 5वीं इंजील है। मसीह यीशु की क्या है? वो 5वीं इंजील। मैं और आप मसीह यीशु की चलती फिरती इंजील हैं। हम उसके चलते फिरते गवाह हैं, हम उसके विटनेसेस हैं। हम दूसरों तक मसीह के कलाम को पहुंचा सकते हैं महज अपने किरदार से। शागिर्दों ने नहीं कहा कि हम मसीही हैं, शागिर्दों ने महज वो किया जो यीशु किया करता था, और लोगों ने उनको देखा, कहा ये तो मसीही है, ये मसीह यीशु जैसे हैं, ये मसीह यीशु कैसे मौजज़ात करते हैं, ये मसीह यीशु के जैसे काम करते हैं। आज मेरी और आपकी गवाही से अगर कुछ जाने मसीह यीशु को कबूल करती हैं, आपकी और मेरी अपनी जिंदगी को मेरे और आपके किरदार से इंस्पायर होकर कोई मसीह यीशु को कबूल करता है, तो ये बहुत बड़ी गवाही है। कलाम मुकद्दस फरमाता है, जब कोई एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते खुदा के हुजूर खुशी मनाते हैं, जश्न होता है, सेलिब्रेशन। ये नहीं लिखा जब कोई शिफा पा जाता है, जब किसी का कर्जा उतर जाता है, जब कोई बहाल हो जाता है। नो, ये बातें गलत नहीं है। शिफा भी खुदा हमें मुहैया करता है, वो हर तरह के मौजज़ात हमारी जिंदगी में करता है, वो हमें कर्जों से भी निकालने की कुदरत रखता है। लेकिन खुदा और उसके फरिश्तों के हुजूर सबसे बड़ा मौजज़ा आप जानते हैं क्या? सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि एक फर्द अपने गुनाहों से तौबा करे, मसीह यीशु की सलीब पर ईमान लाए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए मसीह के कफारे को कबूल करे। ये है खुशी का मौका, यह सबसे बड़ा जश्न, और आप इस जश्न की वजह बन सकते हैं, आप इस सेलिब्रेशन की वजह बन सकते हैं अगर आप मसीह के पैरोकार हैं। मैं और आप अगर अमली तौर पर मसीह की पैरवी करते हैं तो हमारे किरदार से बहुत से लोग मसीह की प्रेज करेंगे, मसीह की ताज़ीम करेंगे, मसीह यीशु से इंस्पायर होंगे। और दूसरा फार्मूला है, हम अपने अल्फाजों से खुदा के गवाह। किससे? अपने अल्फाजों से, अपनी बातचीत से। खुदावंद के खादिम कहते हैं, दिन भर इंजील की मनाती करें, और अगर बोलना पड़े तो फिर बोले। दिन भर क्या करें? इंजील की मनाती करें, लेकिन जब आपको बोलना पड़े तो बोले भी। और दिन भर बोले बगैर कौन सी मनाती हो सकती है? हमारे किरदार से, हमारी बातों से। ये मत सोचे कि मेरे सच बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मत सोचे कि अगर मैं चोरी करूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे छोटे से छोटे अमल से दूसरों की जिंदगियों में फर्क पड़ता है। हमें लोग नोटिस करते हैं, हम ईमानदार होते हुए मसीह के गवाह हैं। हमारी जिंदगी मसीह की बेहतरीन गवाही भी बन सकती है, और हमारी जिंदगी से लोग मसीह से बदजन भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारा किरदार निहायत अहम है। और फिर ना सिर्फ किरदार, बल्कि हम अपनी गवाही मसीह के साथ, मसीह के बारे में दूसरों के साथ बांट सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा आप मसीह के गवाह हैं? तो सोचें, याद करें, आपने कब किसी के साथ यीशु के बारे में बात की? कब किसी ने आपने किसी के साथ यीशु का जिक्र किया है? जब आपने यीशु को किसी के साथ शेयर किया है, आपने कहा कि यीशु ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया है। आपने किसी गैर ईमानदार से कहा हो कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मसीह यीशु की बदौलत है, तो आप यकीनन मसीह के गवाह हैं। हालेलुया, आप यकीनन उसके पैरोकार हैं।
यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह होगे, गवाही दोगे नहीं, गवाह होगे। और अगर गवाही देने की तरफ भी आए तो गवाह के बारे में एक बड़ी खास बात मैं आपसे शेयर कर दूं। जो किसी भी वाक्य का गवाह होता है उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसका स्कॉलर होना जरूरी नहीं है, उसका बहुत बड़ा प्रोफेसर या लेक्चरर होना जरूरी नहीं है। गवाह महज जाता है और अदालत में बताता है जी हाँ मैंने इसको ये करते देखा, मैंने इस तरह बातें करते सुना, वो महज गवाही देता है और उसकी गवाही को कबूल किया जाता है। जब आप मसीह यीशु की जिंदगी का तजुर्बा अपनी जिंदगी में रखेंगे, और वो रूहुल कुद्स के बगैर मुमकिन नहीं है। जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में होगा तो हम कुव्वत पाएंगे, जब कुव्वत पाएंगे उस कुव्वत से हम मसीह के पैरोकार बन सकेंगे, हम मसीह के गवाह बन सकेंगे। और आप महज सादा अल्फाज में किसी से कहेंगे कि मुझे नजात मसीह यीशु से मिली है, मुझे अपनी जिंदगी मसीह यीशु से मिली है और मैं मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूँ। ये गवाही काफी है किसी की जिंदगी को झंझोड़ने के लिए, सोचने के लिए। यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह होगे, कहाँ? यरूशलेम में, फिर तमाम यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर जमीन के ऊपर। और यरूशलेम पहला एरिया यानी आपका अपना खानदान, फिर तमाम यहूदिया, फिर आपका सूबा पंजाब हो सकता है, आपके बाहर के नवाह के इलाके हो सकते हैं। फिर वो कहता है सामरिया। सामरिया जो थे वो भी यहूदी लोग थे, लेकिन उनका कुछ होता, उन्होंने गैर अक़वाम में शादियां वगैरह कर ली, उनकी रसूमात, उनकी सकाफत को अपना लिया था, इसलिए यहूदी सामरी लोगों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन मसीह यीशु क्या कह रहे हैं कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम कहाँ मेरे गवाह होंगे? सबसे पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में। तो हमारी गवाही की सबसे बड़ी, सबसे अहम जगह आप जानते हैं कौन सी है? आपकी फैमिली, आपका खानदान। क्या आपकी बीवी आपकी जिंदगी में मसीह यीशु की गवाही का तजुर्बा देखती है? क्या आपका शोहर आपकी जिंदगी में मसीह यीशु को देखता है? क्या आपके बच्चों को लगता है कि मेरे वालिदैन मसीह के वफादार हैं? या आपके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे मसीह यीशु के हकीकी गवाह हैं? तो हमारी जो गवाही का एरिया वो सबसे पहले क्या? हमारा खानदान है। किसी ऐसे शख्स के पास जाना जो हमें बिल्कुल नहीं जानता, हमारे माजी से वाकिफ नहीं है, उसके सामने जाकर हम कोई भी गवाही दे सकते हैं। सही गवाही का आगाज अपने खानदान से शुरू होता है। वो जो आपकी खामियों से वाकिफ है, जो आपकी बुराइयों से वाकिफ है, जो आपकी जिंदगी से वाकिफ है, आप तभी गवाह हो सकते हैं जब रूहुल कुद्स की कुव्वत आपके पास है। फिर आप गैर कौमों में, फिर आप दूसरे लोगों में भी जब मनादी करेंगे, आपका खानदान आपके साथ होगा, आपकी फैमिली आपके साथ, आप मुत्तहिद होकर खुदा के कलाम की मनादी करेंगे। और याद रखें, रूहुल कुद्स का नज़ूल सिर्फ बाबिल की लानत की मनसूखी नहीं, हर इंसान की जिंदगी में जो लानत है, इब्लीस की तासीरें हैं, इब्लीस के जो हथकंडे हैं, रूहुल कुद्स के नज़ूल से वो ज़ाइल हो जाते हैं। हमारी जिंदगी से हर तरह के मसाइल रूहुल कुद्स के नज़ूल से मनसूख हो जाते हैं। हम कलीसियाई तौर पर मुत्तहिद होते हैं, हम कलीसियाई इनकलाब का हिस्सा बनते हैं, हम वो कुव्वत पाते हैं जिससे हम मसीह के मौसर गवाह बन सकते हैं। और वो तभी मुमकिन है जब हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्स है। इस कलाम के आखिर में हम अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मेरी जिंदगी में रूहुल कुद्स है? क्या मैं रूहुल कुद्स की मामूली में जिंदगी गुजार रहा हूँ? क्योंकि इसी से मुझे वो कुव्वत मिलेगी जिससे मैं मसीह का गवाह हो सकता हूँ। हमें रूहुल कुद्स मांगने की जरूरत है। अपनी दुआओं में खुदा से मांगे कि खुदा मुझे रूहुल कुद्स चाहिए, खुदावन मुझे ये मददगार चाहिए। मसीह यीशु ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप मांगने पर तुम्हें रूहुल कुद्स अता क्यों ना करेगा। आइए आज से अपने लिए रूहुल कुद्स की मामूरी मांगे, ताकि पेंटिकोस्ट की तरह वो जमात जब खुदा के हुजूर मामूरी में बढ़ी तो बहुत से लोगों के लिए नजात का सबब बनी। गुड लाइफ चर्च पाकिस्तान के लिए नजात का सबब बनी। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हम सब एक दफा पाक